Hello guys, welcome to the new tutorial, day 3 tutorial of 30 days Python. So today we'll learn about data types, variables and type conversation. So variables we have already learned in the previous video. So let's see today's video. Okay. So वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है. सो मैं ये बनाता हूँ, एक मिनट मेरे को दीजिए एक मिनट. सो पहले हम बात करेंगे डेटा डॉट पी वाई. ओके. सो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज नथिंग अ बॉक्स, ठीक है. सो हम नोट्स बना देते हैं, एक नोट्स. सो वेरिए एक मिनट. वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल इज इट्स लाइक अ बॉक्स दैट वी कैन स्टोर आवर इंफॉर्मेशन. कहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे? मेमोरी में, ठीक है. मैंने पिछले दिन दिखाया था ना कि कैसे showed you that how to store the variables, how to store the data in variables, how it is storing. Okay. So okay, today I'll tell again. So मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है. जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो उनके लिए एग्जाम्पल है. वेरिएबल मान लो कि आपके पास एक बास्केट है, ठीक है. इट्स अ बास्केट. So it's a basket where you can your keep your mm, keep your things. You can keep your sorry keep your things. Okay. Now the question is coming. What type of things? मान लो आपके पास बास्केट है, उसमें क्या डाल रहे हो? अगर पूछे कि भाई उसमें क्या डाल दो, आपने क्या आंसर दिया? फ्रूट्स. क्या डाल रहे हो? फ्रूट्स. तो उसके बाद आपने बोला कि नहीं फ्रूट्स नहीं, वेजिटेबल. आपने क्या आंसर दिया? वेजिटेबल. व्हाट यू आर कीपिंग हियर? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. So these are types, right? You are keeping your things in this basket. What type of things like is it? Is that this might be fruits, this might be vegetables, this might be something else. Okay. So this basket is called variables, and these things are called data types. What type of data types? I'll show you. मान लो that basket. Okay, I told you basket. Basket equal to 10. So you are keeping 10 in your basket. So this 10 is called integer. Integer. Okay. int. So in Python there is a एक सुविधा दिया गया है. There is so what is it? In other language like C, Java, C++, you have to declare that variable with the type. Like if it is integer type, so you have to declare like that. Int basket. Int basket equal to 10. Okay. So in C or C++ or Java, you have to declare like that. But in Python, you can easily just declare. Automatic by default, it will take. So what is it? If it is only 10, that's mean it is integer. But if it is within bracket, that mean it is string. So there are some types of data types I'll discuss about later. But before it, I'll just discuss about that variable. Okay. So this is called variable. Okay. And there, there are some rules to create the variable.
You can't write like that. Okay, you can't. If you write like that, 1 ABC, AB is equal to ABC equal to 34. This is totally wrong. You can't create. Okay. But of course you can create like that. आप ऐसे create कर सकते हो. ठीक है. There are some rules. So this is called variable. So this basket में कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लो मैंने integer value 34 is integer. तो अपने float भी ले सकते हो. अच्छा हम data type यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है. Now data types. So what is data types? डेटा टाइप्स कुछ नहीं है. मैंने जो बोला है, जो आप क्या डाल रहे हो, किस टाइप का डाल रहे हो डेटा, तो वही है डेटा टाइप्स. मैना प्लीज चेक देयर. मैना कैन यू प्लीज चेक देयर if it is done or not. So what is data type? Data type, what type of data you are using here, this is called what type of data. This is data type. If it is integer, sorry, if it is integer, it can be integer, it can be float, it can be boolean. So we'll discuss about only three: this integer, float, boolean. No, not only these are all, this integer and float string. We'll discuss. Wait, etc. There are a lot of data types in Python, but basically we'll discuss about this. Actually, these all are subtypes. Okay, I'll tell you the main types, that are numbers, string, and boolean. Okay, this is the main data types. Three. There are a lot of, like say dictionary. Okay, these are also data type. You can say. So this is integer, this is float, boolean. Okay, in numbers, we can subdivide it as a integer and float. Okay, numbers. जो पहली बार पढ़ रहे हो थोड़ा संभाल के, ठीक है, याद रखना, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा फिर. नंबर एंड फ्लोट. और एक है कम्प्लेक्स. कम्प्लेक्स क्या है? अच्छा एक बात बताऊं, अब सभी ने क्लास 11 या क्लास 10 में, ये तो क्लास 10 में, अभी तो क्लास 10 में ही करा दिया गया, एक कम्प्लेक्स याद है वो, एक रियल वैल्यू प्लस इमेजिनरी वैल्यू और रियल वैल्यू माइनस समथिंग विथ इमेजिनरी पार्ट. दिस इज कॉल्ड कम्प्लेक्स. आई शो यू. ये हो गया नंबर, ये हो गया बुलियन, और एक है स्ट्रिंग. ठीक है, ये हो गया डेटा टाइप्स. अब हम एग्जांपल देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट नंबर्स. नंबर्स में क्या क्या आएगा? नंबर्स में आएगा, मान लो a इक्वल टू 10. ओके, एंड सो a इक्वल टू 10. सो क्या है 10, मतलब अगर 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 मान लो कि बस 10 ही लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं है, पॉइंट कुछ नहीं है, दिस इज कॉल्ड integer value. but if it is if it is b equal to 25, then it is called float. Okay, let me write here number, integer, and this is called float. और कम्प्लेक्स मैंने बोला है कि c इक्वल टू, मतलब ये एग्जांपल देते हैं, सिकल टू 4 बस. ये है रूल्स हैं जो कम्प्लेक्स बनाने का. ये हो गया रियल वैल्यू, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट. दिस इज कॉल्ड कम्प्लेक्स. ओके, अगर देखो कॉम्प्लेक्स तो हम लोग, मैंने तो बोल दिया कि ये, आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज ए, दिस इज इंटीजर वैल्यू, दिस इज फ्लोट. बट व्हाट इज द लाइक guarantee, like what is the proof behind it? Can you please, if someone asks you that, can you please tell me it is integer value? So now we have we have some function. Okay, this is type function.
how it will look if you print type of A, it will give you int. It will give you int. So this proves that this is an integer value. Similarly, टाइप बी करोगे तो फ्लोट देगा, कॉम्प्लेक्स करोगे तो कॉम्प्लेक्स प्रिंट करेगा. चलो देख लेते हैं एक एक करके. इंटीजर फ्लोट, अच्छा मैंने ये प्रिंट नहीं कराया. देखो हो गया ना कुछ, एक इंटीजर एक फ्लोट है और एक कॉम्प्लेक्स है. ये हो गया नंबर्स डेटा टाइप. नाउ विल डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग. मान लो यही एग्जांपल लेते हैं, मेरा को पायलट ऑन है इसीलिए ये मतलब ऑटोमेटिक आ रहा है. ठीक है, एक एआई का फीचर्स है. ये एक नेम है अभिजीत, मान लो मेरा नाम लिखते हैं स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करना है, अगर आप ये लिखोगे अभिजीत मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तभी ये स्ट्रिंग होगा, अदरवाइज इट वोंट, इट विल गिव यू आउटपुट रॉन्ग. एक लाइक if you are not right like that, if you give you the error C. Okay, if you print of type C, error not defined, so you have to write like so. Now tell me guys, what is it? It is string or it is integer? Tell me, it is string or it is integer? Arey, obviously it is string. Whatever you are writing in within bracket, within this inverted comma. Okay. Sorry, this is not inverted comma. I am telling from the first day. This is colon. This is not colon. Whatever is it, I don't know. You can say I forgot. Okay. So whatever you are telling, writing like this, so obviously it is string. Okay. मैंने क्या बोला है, इंटीजर तभी होगा बस सिर्फ अगर नंबर लिखोगे तभी इंटीजर होगा. लेकिन अगर ये इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा है शायद, हाँ इन्वर्टेड कॉमा है, तो अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे लिखोगे तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग. ओके, तो हो गया स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का कुछ पार्ट्स है. ठीक है, इसको हम, एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन. एक होता है डबल लाइन, डबल लाइन. सो और एक होता है एक सिंगल लाइन, एक्चुअली सिंगल, एक सिंगल स्ट्रिंग, डबल स्ट्रिंग, मल्टी लाइन. ठीक है, क्या ये हो गया आपका सिंगल, ये डबल हो गया. क्यों? ये डबल है ना. अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग. सो मान लो ए इक्वल टू, अच्छा मैंने तो ऑलरेडी एग्जांपल देके रखा है. ये हो गया ये हो गया डबल, ये हो गया डबल, डबल कोट्स, ये डबल कोट स्ट्रिंग, ये हो गया आपका सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स, मल्टी दिखाते हैं. अच्छा मैंने बोला था कमेंट कैसे लिखना है, पिछले दिन बोला था कि अगर ट्रिपल ब्रैकेट ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे तभी कमेंट होगा, बोला था ना. ठीक है, चलो फिर आज एक एग्जाम्पल दे देते हैं. मान लो आप यहाँ पे लिखोगे हेलो, दिस इज पाइथन. सो बस मुझे ये बताओ, ये कमेंट होगा कि नहीं. ये कमेंट नहीं होगा क्योंकि आप एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहे हो. ये जब 3 इन्वर्टेड कॉमा होगा तभी ये कमेंट होता. कब होता, अगर ऐसे लिखोगे, अगर आप ऐसे लिखोगे तब ये कमेंट हो जाता. लेकिन आप वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहे हो तो ये कभी कमेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा
मल्टी लाइन कोड्स, गॉट माय पॉइंट? ठीक है, चलो ये हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पर कुछ नहीं, स्ट्रिंग का जो मतलब मैनिपुलेशन वो बाद में हम सीखेंगे, अभी बस कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे क्रिएट करना है, यही मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, नो बूलियन, चलो बूलियन पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, हम वेरिएबल क्यों क्रिएट करना है भाई? देखो, मान लो, देखो एक सबसे बड़ा यूजर है रीयूजेबल, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग दिस वेरिएबल फॉर रीयूजेबिलिटी। हाउ? Like suppose someone tell you that okay, I'll give you 50 rupees. Okay, I'll give you 50 rupees. Okay, but you have to use, like you have to use not today, tomorrow. Then where you will keep? You have to keep your own pocket. That's why, like that way, if you want to use some value, you have to keep somewhere. This is variable, right? We're keeping this value some in this variable. You're storing this data, right? That's why we're creating variable. Okay. Now, question. What? Hmm. So now we'll boolean. Okay. Now we'll learn boolean. So boolean मतलब मान लो a equal to 10, b equal to 5. ओके, सो बूलियन आंसर क्या देगा? यस या नो? यस मतलब 1, नो मतलब 0। हम गेट्स में पढ़े थे ना, क्लास 11 12 में गेट्स में पढ़े थे या कि एंड गेट, नॉट गेट, उसमें 1 0 1 0 1 मतलब कुछ पॉजिटिव, मतलब 0 मतलब नेगेटिव, कुछ नहीं है, ऐसे भी यहाँ पे है। सो हाउ, like if we print a greater than b, it will give you output true, or if it is false. I'll show you. See. Okay, this is boolean. Now we'll do, okay, this is boolean. Now we'll do type conversation. How? How we'll do type conversation? What is type conversation? टाइप कन्वर्सन नथिंग, इसमें इस जो क्वेश्चन उसी में आंसर है, टाइप को कन्वर्ट करना है एक टाइप से और एक दूसरे टाइप पे। if you want to convert some one type to another type, this is called type conversion. Simple, as easy as it is, bro. So now, so there are two types of, okay, I'll show you. Type conversation. Conversation. There are two types of conversation. One is implicit and another is explicit. So what is implicit and what is explicit? This sure nothing. Implicit क्या होता है and explicit क्या होता है? Implicit मतलब जो Python ऑटोमेटिकली कर देता है, that is done by Python automatically. And explicit मतलब programmer, that is done by programmer manually. Now the example, how? मान लो equal to 10, b equal to 10.5। अच्छा, मैंने टाइप को पढ़ा दिया ना, यहाँ पढ़ा दिया। ओके, सो प्रिंट a प्लस बी। सो प्रिंट a प्लस बी करोगे तो
क्या आंसर आएगा 20.5। ठीक है, तो ये क्या है टाइप, ये कन्वर्ट कर पाएगा कि नहीं क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग तो हमने सीखा ही नहीं है, ठीक है बाद में सीखेंगे। तो ये जो 20.5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या टाइप है, प्रिंट टाइप ऑफ ए प्लस बी, इट इज फ्लो। अरे आंसर आ रहा है, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है देखो ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन मान लो आप यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी 10 कंट्रोल के, सो इसका आंसर क्या होगा, ये टाइप कर पाएगा कि नहीं, चलो देखते हैं। It will not. Okay, why? We can't do like that. Okay, so how can we do? We have to convert this type. This is string. This is string. So first we have to convert it in integer or float. Then only you can add it. Otherwise you can't. How? So there is a function called a of int. ये string था, यह भी int हो गया। ठीक है, तो आप देखो आंसर आ रहा है। You got my point? So this is typecasting। ठीक है, सो टाइप कास्टिंग मतलब एक होता है ऑटोमेटिकली जो पाइथन करता है, उसको उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट, एंड वन मोर एक्सप्लिसिट इज एक्सप्लिसिट what programmer will do manually, this is called explicit। example of explicit, अरे यार explicit type casting, here example of implicit type casting। okay, so these are all from my side। okay, now एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या हुआ, हम लोग की एक्सरसाइज यही है कि हम पहले रिकअप करे थे, क्या क्या पढ़े आज, हम पढ़े हैं डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, एंड देन वेरिएबल्स डेटा टाइप्स में क्या क्या पढ़े हैं, नंबर्स, फ्लोट्स, बूलियन, कम्प्लेक्स। ओके, स्ट्रिंग में पढ़े स्ट्रिंग, मल्टी लाइन, डबल लाइन, सिंगल, सॉरी कोट्स, डबल कोट, सिंगल कोट्स। देन पढ़े हैं टाइप कास्टिंग। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन exercise is a equal to 5, a equal to 5 like that, and b equal to 20। okay, and c equal to int of a plus b, print c, what will be the output, this is your exercise। okay, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, बाय बाय, टेक केयर।